So let us begin with this. Our topic is water quality. Okay, let me change this. Okay, so let us begin with this. Our today topic is water quality. So we are starting our module number 2. In our module number 2, the main heading is quality of water, and in this particular topic, we'll cover these many topics like wholesomeness and potability, then physical, chemical, biological standards, then treatment of water, drinking water standards, then environmental chemistry, eutrophication, primary, secondary, and tertiary treatment of water, typical water treatment flow diagram for the water. Okay, so we'll go this one by one. Today we'll start from this physical and chemical biological standards. Okay, so here we are saying about standards, why it is needed, what is the needed of having a standard of water, on what basis will decide it is having a good standard or bad standard. Whatever water we are taking for a drinking purpose, whether it is potable or not. What do you mean by potable? Potable is that water which will not harm you, or which is not contaminated with any pollutant. That is known as your potable water, which is not harming you at all. That is known as potable water. So it is necessary that to understand what are the characteristics of water, and what are the values, properties, what are the standards. Standard means it has some typical values. So for a particular characteristic, what is the typical value that will indicate the standard of the water? So let us begin with this. Let me tell you this: nowadays there is no such a pure form of water. Whenever we say pure form of water, so it is H2O, which carries 2 hydrogen and 1 oxygen. Nowhere, nowhere you will get this pure water nowadays. Nowadays it happening like this. Okay, just because if you consider the river water, you might be knowing that there are many industries which are disposing their waste, and that waste is consisting of so many elements. So those elements are mixing with your water. So nowhere it is like H2O. In the same way, if we talk about the lake, it is happening same. If we talk about your ocean water, so everyone knows that there is an extra element, there is a salt present in the water, so we can't say H2O. But yes, the purest form of water is your rainwater. I repeat, the purest form of water is your rainwater, because वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन होता नहीं था. आज मैं आपको ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आज की डेट में आपको मिलता नहीं है, क्योंकि पहले के ज़मानों में पोल्यूशन लेवल कम था. आपका एटमॉस्फेयर में आपको पोल्यूशन कम था, आपका सॉक्स लेवल, नॉक्स लेवल कम था, जिसकी वजह से आपका ये जो सॉक्स नॉक्स है वो आपके क्लाउड्स में आके कंडेंस नहीं होते थे. बट नाउ इट इज व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू दिस अर्बनाइजेशन, ड्यू टू दिस lavish life, the concentration of SOx and NOx is so increases, and when it gets vaporized with the water, and when it gets to form a clouds, and then condensation and then precipitation. Now whenever the water is precipitating, so it's known as acid rain. मतलब it's not only H2O. H2O के साथ आपका सल्फर भी आ जा रहा है, H2O के साथ आपका नाइट्रोजन कंटेंट भी आ जा रहा है. So that is why nowadays we are not saying it's the purest form, but yes, previously few years back it is the purest form of water, that is H2O. Okay, so somehow we are trying to get the potable water. It's not a pure water, it's a potable water, whatever we are getting in our home after treatment, because आपके घरों में जो वाटर आ रहा है सिर्फ 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, उसमें अदर एलिमेंट्स भी मिक्स किए रहते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द मिनरल वाटर. आपको जो कमर्शियली वाटर अवेलेबल है, दैट इज आल्सो नॉट अ प्योर वाटर.
बिकॉज उसमें से सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है एंड देन उसमें मिनरल्स में प्रेजेंट किया जाता, मतलब उसमें मिनरल्स ऐड करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मिनरल वाटर. Everyone must know this about difference between a drinking water, the mineral water, the grey water, the black water. All these are different things. Okay. When we say about black water, so the water which is coming from your WCs, your bathroom, that is known as black water. Okay. When we say grey water, then that is floor water, washing water. You can say the utensil wash water, then cloth water. All these are known as gray water. Okay, so there are different kinds of water available with us. So let us will talk about the potable water. ओके. सो अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि अगर आप मार्केट से जो कमर्शियल आप पानी खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, दैट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. नो, इट्स नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, इट्स अ मिनरल वाटर. उसमें मिनरल्स ऐड किए गए हैं, तभी आप जब पीते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस लगता है, मिंट थोड़ा सा अवेलेबल रहता है उसमें. दैट इज द ओनली रीजन, आपको थोड़ा सा फ्रेश लगता है और वो ठंडा भी रहता है. वाटर अगर ठंडा रहेगा तो उसमें डीओ कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा. अगर वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा तो डीओ का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगा. ओके, सो एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. So let us go through this characteristics of water. When we say characteristics of water, then it can be divided into three ways: physical characteristics, chemical characteristics, and biological characteristics. We'll see one by one. We'll start from physical characteristics. So when we say physical characteristics, so it can also be classified in three ways. या उसमें कौन से characteristics आ जाते हैं या कौन से parameters आते हैं फिजिकल में. फिजिकल के अंदर आएगा आपका turbidity, उसके अंदर में आएगा आपका कलर, देन टेम्परेचर, टेस्ट एंड ऑर्डर. These are the basic 5 properties which are required, or you can say these are the 5 basic characteristics which comes under the physical point of view. Okay, now let us see one by one. If you talk about turbidity, what does it mean? ये turbidity होता क्या है? सपोज करो कि मैं 2 सैंपल लेके आया, मैंने सैंपल ए एंड सैंपल बी. वन सैंपल इज एक जो सैंपल लेके आया मैंने उससे आपका टैप वाटर से लेके आया या आरओ से लेके आया, एंड सेकंड वाटर आई एम ब्रिंगिंग फ्रॉम द लेक. तो जब आप दोनों वाटर्स को कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या डिफरेंस दिखेगा? यू कैन इजीली जज दैट, यू कैन इजीली एनालिसिस दिस दैट द आपका जो लेक वाटर आया है वो आपका मडी है, उसमें वो मडी है, उसका कलर ब्राउनिश होगा. So you can easily give your judgment like you can conclude like this that this your sample B is your highly turbid water. Okay, highly turbid water. On what basis we are saying? क्योंकि उसमें आपके सस्पेंडेड सॉलिड रहते हैं और आपके कुछ कोलाइडल मेटल्स रहते हैं जो कभी सेटल नहीं होते हैं. वो सेटल नहीं होते हैं, वो हमेशा ब्राउन इन मोशन में रहते हैं. दैट्स व्हाई आपका जो वाटर का कलर है वो आपका ब्राउनिश दिखता है. सपोज दैट कि हमने थोड़ा सा अलाउ किया पानी को सेटल होने के लिए, पार्टिकल्स को सेटल होने के लिए, वाटर को स्टिल होने के लिए, देन यू कैन सी सम सस्पेंडेड पार्टिकल्स वेयर गेट डाउन एंड दे सेटल डाउन. ओके, तो वो आपका प्रेसिपिटेशन मेथड हो गया. तो आप जब देखोगे तो सारे पार्टिकल जब नीचे आके मतलब सेटल हो जाएंगे, देन आपका जो ऊपर का वाटर है वो थोड़ा सा क्लीन दिखेगा, एंड दैट इज नोन एज लिटिल बिट दैट इज नोन एज लेस टर्बिड वाटर. ओके, तो दिस इज द डिफरेंस. मतलब टर्बिडिटी किसको बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, नॉन टर्बिड वाटर किसको बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट, बट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस अगर हम बात करें तो यस इट हैज सम स्टैंडर्ड्स. ओके, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितना रहना चाहिए. एंड नॉर्मली इट इज near about 10 NTU. Drinking water should not have a turbidity more than 10 NTU. It should be okay. 10 NTU से ज्यादा नहीं होगा. 10 NTU से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? इसका मतलब वहाँ पे पार्टिकल ज्यादा है. अगर ये पार्टिकल्स रहेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल बोलो, कोलाइडल पार्टिकल, whenever you intake your this water, तो क्या हो जाएगा? ये आपके किडनी में जाके मतलब सेटल होना शुरू हो जाएगा, and it will harm your kidney. Okay, your internal part may damage just because of this. Okay, so it is necessary कि आपका जो वोकल है वो भी चोक होने के चांसेस है. तो इट इज नेसेसरी दैट यू शुड रिमूव द टर्बिडिटी. ओके, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करना है.
सो फॉर दिस, अगर ये हम स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं इसके, अगर इसके स्टैंडर्ड्स निकालने हैं, कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना है, सो यू विल रिक्वायर सम यूनिट, ठीक है। तो उसको कुछ यूनिट लगेगा, उसको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। सो व्हाट आर द टेस्ट? सो देयर आर 3 टेस्ट, दैट इज टर्बिडिटी रॉड और टेप, देन जैक्सन टर्बिडिटी मीटर या बालिस टर्बिडिटी मीटर, अभी एनटीयू करके हम बोलते हैं, दैट इज नेप्थलो टर्बिडिटी मीटर, ठीक है। तो एनटीएम बोलते हैं, सॉरी, नेप्थलो टर्बिडिटी मीटर। तो अभी ये भी चीज आ गया है उसमें, एंड इसी के बेसिस में हम टर्बिडिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। So, turbidity caused due to the presence of suspended and colloidal matter in the water. The characteristics and amount of turbidity depend upon the type of soil which the water has moved, groundwater or less turbid than the surface water. Okay. Turbidity is a measure of a resistance of water to passage a light through it. अब ये कैसा, लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम। अगर मैंने एक बीकर मैंने वाटर लिया, ओके, दिस इज फुल्ली फिल्ड विद वाटर, ओके। नाउ अब क्या हो रहा है कि इसमें से लाइट पास कर रही है, इसके ऊपर लाइट हमने क्या किया, लाइट इज एक्टिंग ऑन द सरफेस। नाउ व्हाट विल हैपन, ये आपका एक बीकर है, ग्लास बीकर है, उसमें वाटर है। इट मे हैपन कि आपका जो लाइट है वो सीधा ट्रांसपेरेंट सीधा चले जाएगा, और इट मे हैपन कि आपका जो रेज है इट मे रिवर्स बैक, इट मे हैपन दैट कि आपका जो रेज है वो आपका थोड़ा सा एक एंगल बना के बेंड कर जाएगा। व्हाई दिस इज हैपनिंग सो, ये जो मैं फिनोमिनन आपको बता रहा हूँ ये क्यों हो रहा है। एक चांसेस है कि एक केस ऐसा है कि आपका जो रेज है वो सीधा पास कर जाएगा, सेकेंड इज इट मे रिफ्लेक्ट, एंड थर्ड वन इज इट मे रिफ्रैक्ट। ट्रांसपेरेंट, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट, ये तीनों फिनोमिना हो सकता है। लेकिन ये तीनों जो फिनोमिना है, हाउ एंड ऑन व्हाट बेसिस इट इज हैपनिंग, ये किस बेसिस में ये चीज हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स। आपके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके कारण ये हो रहा है। लेट मी शो यू दिस। से सपोज करो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है इतने में, तो क्या हो जाएगा कि पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो लाइट स्कैटर्ड नहीं होगा, लाइट स्कैटर्ड नहीं होता, इसका मतलब क्या है, लाइट सीधा पास हो जाएगा। बट दिस में हैपन कि यहाँ पे आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स एक हाईली डेंस अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या होगा, लाइट आके जाएगा नहीं, क्योंकि दीज आर द हाईली डेंस मैटर। ये हाईली डेंस मैटर के कारण क्या हो रहा है, ये आपका जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नाउ दिस सर स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन अवेलेबल नहीं है। नहीं सर। Okay, I'm sorry. Now is it visible? Yes sir. Visible है, screen visible है? Yes Okay. sir. पहले बता देना था थोड़ा सा। Yes sir. Okay, let me draw this diagram again. Say suppose that this is your beaker. Is it visible now? And which is Yes, which sir. is completely filled with water like this. Okay, ये आपका वाटर से फिल्ड है। नाउ अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपके रेज आ रही हैं like this, rays are coming like this, okay, ये रेज आपकी आ रही है। देयर में भी 3 चांसेस लाइक कि ये जो रेज है वो आके आगे बढ़ गया, दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंट। नाउ दिस रेज में कम बैक लाइक दिस, ओके, और दिस रेज में गो लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। दिस इज ट्रांसपेरेंट, दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन। अब ये जो भी फिनोमिना हो रहा है ये ऑन व्हाट बेसिस इट इज हैपनिंग, जस्ट बिकॉज
कि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो आपके जो रेज है वो कहीं से स्कैटर्ड नहीं होंगे, कहीं टकराएंगे नहीं, वो सीधा आपका आगे निकल जाएगा. बट if suppose that if in this particular area your solid particle, suspended particle और colloidal particle are in the highly dense form, so ऐसे केस में क्या होगा, ये जो आपका रेस था ये वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल से स्कैटर करके वापस हो जा रहा है. ठीक है, दिस इज वन केस. अनदर केस मे बी लाइक दिस कि यहाँ पे पार्टिकल्स तो होंगे लेकिन दीज आर द लूजली डेंस. ओके, दीज आर द लूजली डेंस. सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे लेकिन लूजली डेंस होंगे. सो दिस में भी हैपन कि ये रेस जाएगा, स्कैटर्ड करेगा और फिर वो आगे की तरफ में ट्रेवल कर जाएगा. तो ये जो भी मैं आपको फिनोमिनन बता रहा हूँ यहाँ पे, योर नेप्थेलो टर्बिडिटी मीटर इज वर्किंग ऑन दिस. बिफोर दैट जैक्सन टर्बिडिटी मीटर बना था, वो भी यही फंडामेंटल्स पे काम करता है, बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसपेरेंट जो फिनोमिना है इसी पे ही काम करेगा. अगर आपका क्लीन वाटर रहेगा तो क्लीन वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं रहेंगे. अगर क्लीन वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस रेज विल गो डायरेक्टली इन स्ट्रेट डायरेक्शन. मतलब वहां पे कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, बराबर है. तो ऐसे में क्या होगा, जितना यहाँ से रेज आ रहा है उतना ही रेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा. कहने का मतलब क्या है कि दिस इज, ये जो हम बीगर डालते हैं, दिस इज एक चेम्बर के अंदर में होता है. दिस इज अ वेरी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट. तो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट में एक चेम्बर रहेगा जहां से लाइट इमिट होगा और जहां पे एक लाइट को रिसीव करेगा. देयर इज वन ट्रांसमीटर, अनदर साइड इट इज अ रिसीवर. यहाँ से जितने इंटेंसिटी से रेज जाएगी, अगर उतने ही इंटेंसिटी से रेज यहाँ पे कलेक्ट होगी, इसका मतलब है कि इट इज लीस्ट टर्बिड वाटर. आई रिपीट, दिस इज द लीस्ट टर्बिड वाटर. अगर यहाँ पे जिस इंटेंसिटी से रेज जा रही है और यहाँ पे अगर कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा है, सो दिस इज अ कंप्लीटली हाईली डेंस वाटर, सो हाईली डेंस टर्बिड वाटर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रहा है. नाउ सपोज दैट आपको कोई पर्टिकुलर आपका रेज एक्स इंटेंसिटी से रेज आ रहा है और यहाँ पे आपको एक्स डैश इंटेंसिटी से रेज कलेक्ट हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टर्बिडिटी की कुछ ना कुछ वैल्यूज रहेगी, यानी कि वो आपका कुछ ना कुछ टर्बिड वाटर है. सो लाइक दिस कोर फंडामेंटल वर्क for NTU as well as for Jackson turbidity meter. Okay, so this one is your first method, turbidity rod और tape method. तो क्या होता था, से सपोज करो कि दिस इज योर रिवर. अब यहाँ पे क्या करना है कि पुराने जमाने का ये मेथड है जिसमें कि आपका जो लोग रहते थे, पुराने जमाने के साइंटिस्ट रहते थे जो भी इस पे काम करते थे, तो व्हाट दे डू, वो अपनी नाव लेके, वो अपनी बोट लेके रिवर के अंदर चले गए. ठीक है, रिवर के अंदर जाने के बाद वो क्या करेंगे, यहाँ से एक रॉड को इंसर्ट करेंगे. राइट, तो ये रॉड में वो लोग क्या करते थे, मेजरमेंट लगा दिया उन्होंने क्या किया, रॉड में अपने क्या किया, मेजरमेंट लगा दिया लाइक दिस. नाउ जब उन्होंने उसको डिप किया, जिस मेजरमेंट तक के उनको रीडिंग मिल जाएगी, आई रिपीट, उन्होंने इसको डिप किया रॉड को, जिस लेवल तक के या जिस डेप्थ तक के उनको रीडिंग अवेलेबल हो जाएगी, रीडिंग मतलब विजुअली आंखों से, विद द नेकेड आई, इफ दे एबल टू सी द रीडिंग्स, तो समझ लेते थे कि यहाँ पे टर्बिड वाटर नहीं है. और अगर इस लेवल पे ही अगर उनको मिल जाए, रीडिंग दिख नहीं रही है या रीडिंग नहीं दिखेगी, तो समझ जाएंगे कि यहाँ तक का क्लीन वाटर है लेकिन इसके नीचे वो turbid water है. Initially, if they are getting a clear water and they can able to see this reading, then they will suggest that this is the clean water and below this is your turbid water. So this is the old theory. This is the old theory. अभी आजकल ये यूज नहीं होता है. अभी सीधा ग्रैप सैम्पलिंग होती है. ग्रैप सैम्पलिंग यानी कि रैंडम सैम्पलिंग होती है और वो रैंडम सैम्पलिंग को आप NTU आपका जो नेप्थेलो टर्बिडिटी मीटर है, आप वहाँ पे पुटअप कर दो बीकर के अंदर में, देन डायरेक्टली ऑन दिस रेस फिनोमेना आपको उसका टर्बिडिटी का वैल्यू मिल जाता है. द सैंपल टू बी टेस्टेड इज poured into a test tube, just I said this, and placed in the meter
and unit of turbidity is what? It is a NTU. Okay, so this is a NTU, is directly on the scale by a needle or by a digital display. Drinking water should not have a turbidity more than 10 NTU. 10 NTU के ऊपर में नहीं होना चाहिए. Okay, this test is useful in determining the detention time in settling for raw water and to dosage of coagulation required to remove the turbidity. अब ये चीज कहाँ काम आएगा? इसका सिग्निफिकेंस है. टर्बिडिटी हम निकाल रहे हैं, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि सपोज करो कि हमने हमारा सेडिमेंटेशन टैंक बनाया. दिस इज अवर सेडिमेंटेशन टैंक. ओके, यहाँ पे आपका वाटर आ रहा है और यहाँ से वाटर आपका बाहर एग्जिट हो रहा है. दिस इज योर इनलेट एंड दिस इज योर आउटलेट. नाउ वाटर इज स्टोर्ड ओवर हियर and always it is stored in the same level. ये भले तो डायग्राम आगे पीछे हो रहा है, बट ऑलवेज का एक ही लेवल होता है, वो एक ही लेवल पे रहता है. ओके, तो ये आपका इनपुट हो गया, या सॉरी ये आपका इनलेट हो गया, ये आपका आउटलेट हो गया, ये आपका वाटर लेवल हो गया. सपोज दैट इनिशियली, आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियली, जब ये रॉ वाटर आया तो यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स थे प्रेजेंट है, सस्पेंडेड पार्टिकल और कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट हो रही है. दिस इज हैपनिंग ऑन टाइम टी. ये जो हम बात कर रहे हैं ये टाइम टी के बारे में बात कर रहे हैं. से सपोज करो कि मैंने अगर 30 मिनट का टाइम दिया सेडिमेंटेशन टैंक में. ओके, अगर 30 मिनट का टाइम दिया, से सपोज करो T2, व्हाट विल हैपन कि ये जो पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, ये सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे. जब वो सेटल होंगे तो सब ये वो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा. एंड देन आप इसको इस टर्बिड वाटर, आपका जो स्लज है यहाँ पे, इसको आप लोग कलेक्ट करके आप बाहर कर सकते हो. बट द बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि आपका ये जो पर्टिकुलर वाटर रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो आपका वाटर है, now this will be termed as your clean water. This will be termed as in clean water in terms of what? In terms of turbidity. क्योंकि पहले यहाँ पे आपका टर्बिड वाटर था, लेकिन जैसे हमने उसको 30 मिनट्स का टाइम दिया, टाइम T2 में देखा हमने कि सारे पार्टिकल्स आपके क्या हो गए? सेटल हो गए. तो इतना जो पर्टिकुलर पोर्शन जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, दिस विल बी योर क्लीन वाटर इन टर्म्स ऑफ टर्बिडिटी. ओके, सो ये इसका एप्लीकेशन मतलब आगे आएगा जब हम इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लांट में जब जाएंगे उस टॉपिक में, तो वहाँ पे भी हम आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि हाउ दिस सेडिमेंटेशन टैंक वर्क्स, आपका एफिशिएंसी कितना रहेगा, क्या रहेगा. राइट, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड विल सी नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज कलर एंड टेम्परेचर. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास दो सैंपल है, सैंपल ए एंड सैंपल बी. अगेन वन इज फ्रॉम योर एक्वागार्ड या जो भी आपका रहेगा, एंड सेकंड वन इज योर टैप वाटर इन योर रेनी सीजन. ठीक है, ऐसे दो वाटर है, तो दोनों भी आपने ग्लास बीकर में कलेक्ट किया, एंड आप कौन सा वाटर पीने को चाहोगे? बट ऑफ कोर्स यू विल चूज द क्लीन वाटर. यू विल चूज अ क्लीन वाटर, लेकिन किस टर्म में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कलर, यानी कि अगर आपका ट्रांसपेरेंट कलर वाटर रहेगा तो आप उसको चूज करोगे. राइट, आई रिपीट, अगर ट्रांसपेरेंट कलर रहेगा तो वो चूज रहेगा, या आपका मडी वाटर रहेगा तो वो चूज करोगे. सो कलर अपीयरेंस जो है वो इमीडिएट आपके सामने आ जाता है कि नहीं. आपका अगर ट्रांसपेरेंट कलर दिख रहा है, आपको ट्रांसपेरेंट वाटर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फिजिकल बेसिस में हाँ दिस इज अ क्लीन वाटर इंस्टेड ऑफ दैट मडी वाटर. मडी वाटर को हम कभी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे. ओके, सो दैट इज व्हाई कलर इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज व्हाई टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट. टेम्परेचर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपका डीओ है, डीओ यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये टेम्परेचर में बहुत डिपेंड करता है. ठीक है, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. समर सीजन रहता है, समर सीजन में हम थक हार के खेल के आगे घर पे थक गए, देन इमीडिएटली वी यूज्ड टू आस्क गिव मी अ कोल्ड वाटर. आप हमेशा ठंडा पानी का रिक्वायरमेंट आपका रहता है. व्हाई इट इज नेसेसरी? मतलब ऐसा क्यों आपको लगता है कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड क्यों है, बट मतलब आपको ठंडा पानी का रिक्वायरमेंट क्यों है? जस्ट बिकॉज अगर आपका
हॉट वाटर रहेगा, कभी आप उसको पी के भी देखो, एक तो उसमें टेस्ट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। कभी भी बॉयल वाटर में आपको टेस्ट मिलता नहीं, इट्स अ टेस्टलेस। किसी को बॉयल वाटर में अगर टेस्ट मिल रहा होगा तो समझो वो अच्छे से बॉयल नहीं हुआ है, बट बॉयल वाटर हमेशा आपका टेस्टलेस रहता है, ठीक है। टेस्टलेस है तो उसमें ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाता है उसके कारण। तो और जब आप ठंडा पानी पीते हो तो उसमें ऑक्सीजन आपको फ्रेश लगता है, आपको ऑक्सीजन मतलब जैसे ही आप पियोगे आपको ऐसे मतलब गले में आपको फ्रेशनेस लगेगा, वो फ्रेशनेस आपके ऑक्सीजन के कारण आ रहा है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली अब ये सोचो कि अगर आपके घर में गर्म पानी आएगा पानी, तो आप पियोगे कैसे? टेम्परेचर अगर 30 डिग्री 44 डिग्री अगर ऐसा है, नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है, इट गोज टू 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वाटर हम पी रहे हैं तो ओके, व्हाट विल हैपन इफ इट इज मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड? आप पियोगे कैसे उसको पानी को? आपका एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रहेगा? आप उसको इनहेल कैसे कर पाएंगे, हम मतलब इनटेक कैसे कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। सो टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वेयर एज अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करें, अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर रहा या 2 डिग्री टेम्परेचर रहा उसको वाटर का, तो वो भी हमारे पीने के लिए मतलब सेफर नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। The most desirable temperature for public service is between 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, because 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आपका जो DO का वैल्यू है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। That's why. So color is of water is usually due to organic matter. कलर किसकी वजह से आता है? The presence of organic matter in colloidal condition. I repeat, this colloidal condition is what? This is the particles having all the time in the Brownian motion. Brownian motion क्या होता है? Let me tell you this. What do you mean by Brownian motion? Say suppose करो कि this is your beaker and this beaker is fully filled with water. Okay. अब ये जो आपका पार्टिकल है, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब ये डॉट डॉट देखिए, ये दिस आर द कोलाइडल पार्टिकल्स, एंड कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज बहुत कम रहता है। यू कैन नॉट सी बाय योर नेकेड आई, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। कोई अगर चैलेंज भी करेगा that I have seen this collider particle with my naked eye, so I'm sorry, that is a false statement. If you see this black spots, so these are the your collider particles which will not settle on. ये आप settle नहीं कर सकते, इसको नहीं होते settle, ऑटोमेटिक ये नेचर नहीं है उनका। What happen? ये जो है ना, ये सपोज करो कि ये बड़ा सा मैंने पार्टिकल बनाया, दिस इज collider particle। सो क्या होता है कि ये एक पार्टी यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकराएगा, इस पार्टिकल से टकराएगा, इस पार्टिकल से टकराएगा। जितने बार ये टकराया जाएगा उतने बार उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाएगा, जितने बार टकराएगा उतने बार डायरेक्शन चेंज करेगा, जिसके कारण ये हमेशा घूमता रहता है, ये हमेशा ब्राउनियन मोशन में रहता है। इससे टकराना, उससे टकराना, फिर कभी ग्लास से टकराना, फिर ये सरफेस से टकराना, फिर ये सरफेस से टकराना। सो हमेशा ये आपका ब्राउनियन मोशन में घूमता रहेगा। दैट्स व्हाई ये पार्टिकल्स आपके सेटल नहीं होते हैं। एंड दिस आप देखिए, ये आपका नेकेड आई से आपको दिखता नहीं है, मतलब उसको पार्टिकल साइज का मास भी क्या होगा, जितना बारीक पार्टिकल रहेगा उसका मास उतना रिड्यूस होता जाएगा, तो आपका उसका मास भी नहीं है, जिसके कारण ये हमेशा आपका सस्पेंडेड नेचर में रहता है। ओके, द परमिसिबल कलर फॉर अ डोमेस्टिक वाटर इज 20 ppm. I repeat, the permissible color for a domestic water is 20 ppm. ppm is a parts per million. Someone say mg per liter, okay, in your level it is good, but the ppm is equivalent to mg per liter, but it is not equal. I will repeat this, ppm is not equal to mg per liter, there is difference. बट ऑफकोर्स अगर आपके इस लेवल में, बीटेक लेवल में चल जाएगा, क्योंकि कई सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको दिखेगा कि कहीं पीपीएम मेंशन है तो कहीं पे एमजी पर लीटर मेंशन है। सो नो नीड ऑफ वरी, दोनों भी लिखोगे तो चलेगा, बट आपने ध्यान में रखना है कि आप पीपीएम फॉलो करो तो पीपीएम में कोई फॉलो करो, अगर एमजी पर लीटर फॉलो कर रहे हो तो आप उसी को फॉलो करो। ओके, एंड नाउ आप ये कौन से स्केल में आप इसको कलर को देखते हो? दिस ऑलवेज दिस इज चेक, ऑलवेज दिस इज चेक इन अ कोबाल्ट स्केल। ये जो कोबाल्ट स्केल है, प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल, इसमें इसको कलर को चेक किया जाता है। ठीक है, द कलर इन अ वाटर इज नॉट हार्मफुल फॉर अ ऑब्जेक्शनेबल।
ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। हमारे घरों में जो थर्मोमीटर है, हम उसके बेसिस में भी टेम्परेचर को आराम से चेक कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए सरफेस वाटर इज जनरली एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सीधी सी बात है, जो आपका सरफेस वाटर है वो आपके एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है, तो आपके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वही आपके वाटर का टेम्परेचर हो जाता है। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि सरफेस वाटर के नीचे के वाटर में भी वही टेम्परेचर रहेगा। नो, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है और वाटर जिससे कांटेक्ट में है, उतनी ही चीजें आपकी उतनी ही चीजें आपकी उतना ही सरफेस आपका उस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर होगा। while that of ग्राउंड वाटर मे बी मोर और लेस देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एंड जैसे जैसे आप डीपर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप बोरवेल भी करते हो, तो आपका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता रहता है। The more desirable temperature for a public supply between is 4.4 degrees centigrade to 10 degree centigrade. It is 4.4 to 10 degrees centigrade. This is a desirable. The temperature above 35 degrees are unfit for public supply because it is not potable. वो पीने लायक नहीं रहेगा ना। मतलब आप सोचो, आप 30 डिग्री अगर आपने बॉयल भी किया है वाटर, तो बॉइलिंग जैसे थोड़ा सा, उसको हिंदी में एक वर्ड है, कुनकुना बोलते हैं। हिंदी में उसको वर्ड है, हिंदी मराठी में कुनकुना बोलते हैं। और इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं लुकमे वाटर, यानी कि थोड़ा ठंडा थोड़ा सा गर्म। सो दैट इज नॉर्मली 35 डिग्री से कम रहता है वो भी। इवन जब हम लुकमे वाटर भी हम पीने की कोशिश करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट फिजिबल टू ड्रिंक। ओके, सो नेक्स्ट इज टेस्ट एंड ऑर्डर। सो टेस्ट एंड ऑर्डर इन अ वाटर। ओके, देन इमीडिएटली आ जाता है आपका टेस्ट एंड ऑर्डर। यानी कि क्या टेस्ट, यानी क्या, आप अपनी जबान से जब लगाएंगे तो वो आपको टेस्ट मिलेगा, वो आपकी जबान पे डिपेंड है। बट ऑर्डर यानी क्या, ऑर्डर यानी कि इट्स अ स्मेल। अगर आप देखो, आपके पास फिर से अगर मैं बोलूँ कि 2 सैंपल आपको दिया है, सैंपल ए एंड सैंपल बी, आप दोनों को टेस्ट करके देखोगे और फिर बताओगे कि विच वन इज बेटर। ओके, सो दैट इज अ फिजिकल वन। ऑर्डर में क्या होगा कि यू विल ट्राई टू स्मेल दैट। अगर मतलब आपको किसी वाटर में से स्मेल आ रहा है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। 2 सैंपल है हमारे पास, सैंपल ए एंड सैंपल बी। सैंपल ए इज योर फ्रेश वाटर जो जस्ट आपने रिवर से उठाया, ठीक है। सैंपल बी यू आर टेकिंग फ्रॉम द लेक। ओके, तो दोनों को डिफरेंस क्या, कौन सा फ्रेश वाटर रहता है? ऑलवेज वाटर फ्रॉम द रिवर इज योर फ्रेश वाटर। तो आप जब भी उसका अगर आप स्मेल भी लोगे तो इट इज वेरी प्लीजेंट, अच्छा रहेगा। लेकिन वेर एज अगर आप लेक का अगर वाटर को उसमें आपने ऑर्डर लिया या स्मेल लिया ना, तो यू विल लिटिल बिट, आपको थोड़ा सा यूट्रिफाइड स्मेल आएगा या थोड़ा सा फाउल स्मेल आएगा, क्योंकि रिवर वाटर जो है आपका बहता पानी है, लेक जो है आपका स्टोर्ड पानी है। तो स्टोर्ड के कारण वो वाटर वहीं के वहीं जमा रहता है, इसके कारण बाज भी आता है। इवन आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो, अगर आपने पानी 10 दिन के लिए जमा करके रखा है, तो विल इट बी ओके फॉर यू टू ड्रिंक दैट वाटर? नो, इट्स नॉट, इट्स हाईली ऑब्जेक्शनेबल। क्योंकि 10 दिन पहले का पानी आप नहीं पी सकते, क्योंकि वो बदबू मारने शुरू कर देगा। तो हम ऐसे पहचान मतलब आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन दिस टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट एंड ऑर्डर इन अ वाटर मे बी ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, ये जो टेस्ट एंड ऑर्डर आ रहा है वो क्यों हो रहा है? H2O तो आपका प्योर फॉर्म में, लेकिन H2O में अगर आपका कोई प्रेजेंस ऑफ डेड और लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या डिसॉल्व गैसेस सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइंड विद ऑर्गेनिक मैटर or any mineral substances such as the sodium chloride and compounds and carbonates and sulfate of other substances, अगर ये आपके वाटर में प्रेजेंट रहेगा इन चीजों में से, तो डेफिनेटली इसका टेस्ट एंड ऑर्डर तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सपोज करो कोई छोटा कीटाणु है, अगर वो वहां पे मर गया होगा, वहीं रह गया, तो प्रॉब्लम होगा। डिजॉल्व गैसेस, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड अगर आपके साथ वाटर के साथ मिक्स हो गया, अगर मीथेन आपका वाटर के साथ मिक्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आपको वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा? इट विल डिप्रिशिएट योर ऑक्सीजन वैल्यू। ठीक है, सो दैट्स व्हाई टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द टेस्ट ऑफ दीज आर डन बाय सेंस ऑफ अ स्मेल एंड टेस्ट, because these are the present in such small proportion that is
दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम बाय ए केमिकल एनालिसिस। हम टेस्ट का केमिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, ऑर्डर का केमिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, हम वो फिजिकली मतलब टेस्ट लेके जबान से या हम स्मेल करके ही ये सब चीजों को कंसिडर कर सकते हैं। Now, the water having a bad smell and odor is objectionable and should not be supplied to the public. आप सोचो अगर कोई ट्रीटमेंट वाटर वाला अगर किसी ने आपको ऐसा वाटर भेजा टेस्ट एंड ऑर्डर, तो आप उसको छोड़ोगे क्या? उसको छोड़ोगे नहीं, वहां जाके शायद उसको मार मुड़ के आ जाओगे। सो दिस मे हैपन, सो इट इज नेसेसरी कि हमें ऑब्जेक्शनेबल चीजें नहीं करना चाहिए। द इंटेंसिटी ऑफ द ऑर्डर एंड मेजर इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड नंबर। अब जब हम स्मेल करते हैं तो ये एक स्केल है, थ्रेशोल्ड स्केल है। अब हम टेस्ट एंड ऑर्डर को हमेशा थ्रेशोल्ड स्केल में कंसीडर करते हैं। ओके, नाउ दिस नंबर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ सैंपल ऑफ वाटर which is required to be added further. Okay, so that is all about the physical parameters. Now let's move further for the chemical characteristics or chemical parameters. Okay, when we say chemical parameters, so particularly कुछ special चीजें आ जाती है इसमें which reveals the sanitary quality of the water. In the chemical analysis of water, these tests are done that will reveal the sanitary quality of water. Sanitary quality of water का मतलब है कि water का standard, कि water good, whether water is a good or bad, whether it's a hygienic or unhygienic, ये सब हम chemical test करते हैं और इसको बोलते हैं chemical characteristics. No, few chemical characteristics are there. Few chemical tests are done for find out the chemical characteristics are like total solids. You can find out the total solids. You can find out the pH value, hardness of water, chloride content, and many more. We'll see one by one. Okay. So, if we talk about total solids, अगर हम total solids के बारे में बात करना शुरू करें, so total solid includes the solid in a suspended colloidal and dissolved forms. अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसा, suppose this is your beaker. Beaker is filled with water till this. अब यहाँ पे this is filled with water. यहाँ पे क्या होगा कि it has particles. Particles कैसे? Particles may be suspended like this, or particle may be you are dissolved. जैसे आपको पता होगा salt के बारे में पता है, sugar के बारे में पता है. Okay, so ये जो चीजें dissolve हो जाता है, दिखता नहीं है, but फिर भी वो particles present है. That is known as your dissolved particles. Now the thing is how you will bifurcate these things. आप इसको bifurcate कैसे करोगे? Very quick test is there for this. आपका जो भी वाटर है, आप पूरा वाटर यहाँ पे pour करो. This is your funnel, and ये funnel normal funnel नहीं है. इस फनल के ऊपर में आपने क्या किया है कि आपने क्या किया, यहाँ पे एक फिल्टर पेपर भी लगा दिया है. ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर हम बोलेंगे. whenever water will pass, तो क्या होगा, पानी जब इससे पास करेगा तो ये आपको फिल्टर्ड वाटर आएगा which will be collected in this beaker. इसमें आपने बीकर में कलेक्ट किया. लेकिन अब यहाँ पे जो आपका फनल है, फनल पे आपका ये फिल्टर पेपर है, तो यहाँ क्या होगा ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, कोलाइडल बोलता है, आपके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वही ट्रैप होंगे. आई रिपीट, आपके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो ट्रैप होंगे. बाकी का जो भी वाटर है वो सॉलिड पार्टिकल्स, आपके जो डिसॉल्व पार्टिकल्स है उसको आगे लेके बढ़ जाएगा. ठीक है, बिकॉज ये जो पोर साइज है इस फिल्टर पेपर का, इससे कम साइज का वो है. इट इज इन द नैनोमीटर. ओके, विच कैन नॉट बी सीन बाय योर नेकेड आई. ठीक है, वो यहाँ से पास हो जाएगा. देन इन दिस केस ओनली यू कैन सेपरेट योर सस्पेंडेड पार्टिकल एंड योर dissolved particles. The quantity of suspended solid is determined by filtering the sample of water through a fine filter. मैंने जैसे बताया आपको वाटर को इससे पास करना पड़ेगा. Then
ड्राइंग एंड वेइंग, अब उसको क्या करोगे, इसको आप, ये जो फिल्टर पेपर आपने लिया, इस फिल्टर पेपर को आपने ओवन में रख देना है, एंड यू हैव टू कीप इन ओवन फॉर एटलीस्ट 1 or 2 hours फॉर 100 डिग्री एंड अबव, बिकॉज 100 डिग्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100 डिग्री का अबव इज नोन एज योर बॉइलिंग टेम्परेचर। पानी का, आपको वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री प्लस होता है। जैसे 100 डिग्री प्लस होगा तो आपका जो वाटर है वो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो पूरा आपने जब उसको ओवन में रखा तो वाटर गेट इवापोरेटेड, लेकिन बचा हुआ जो रहेगा यानी सिर्फ फिल्टर पेपर के ऊपर में जो आपका पार्टिकल्स है वही रह जाएंगे। देन यू कैन टेक अ वेट, then easily you can determine what is your concentration of your suspended particles. Next, the quantity of a dissolved and a colloidal solid is determined by evaporating the filtered water obtained from the suspended solid test and weighing the residue the same way. The total solid in a water sample can be directly determined by evaporating the filtered water obtained from the suspended solid test and weighing the residue. Okay. The total solid in a water sample can be directly determined by evaporating the water and weighing the residue of the total solid is fused in a muffle furnace. An organic solid decomposes. Okay, so कहने का मतलब है कि this is a very simple method to determine the suspended solid and dissolved solids. The addition of the suspended solid and dissolved solid is known as your total solids. Okay. Now, next important parameter is pH value. Now, ये हम हमारे शायद 6th से 7th क्लास हम पढ़ते आ रहे हैं about the pH. pH is in the scale of 0 to 14. I repeat, pH start with 0 and it's end with the scale of 14. Now, what do you mean by pH? वो pH से ये ऐसा क्यों लिखा जाता है? What do you mean by this pH? ये इस pH का मीनिंग क्या है? आप पढ़ तो रहे हैं 7th क्लास से पढ़ रहे हैं अबाउट पीएच, लेकिन व्हाट इज मीन, हाउ यू डिफाइन दिस पीएच? पीएच को अगर हम साइंटिफिक तरीके से हम बात करें, अगर इसको हमने डिफाइन किया, सो इट इज अ एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस. आई रिपीट, इट इज अ एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस. व्हाई इट इज written like small p and capital H? The small p is an indication that this is coming from the Greek word. ये आपका एक Greek word से आ रहा है. Now, if you see this properly, this diagram, आपका 7 में ये न्यूट्रल होता है. 7 no, actually it is neutral on 7. 7 के नीचे जो भी होगा वो acidity, 7 के ऊपर में जो होगा that is alkalinity. But here we are talking about neutral in the terms of a drinking water. When you will say it's a neutral water, when it is from 6.5 to almost 9, or you can say 8.5. जब ये 8.5 और 6.5 के बीच में होता है, then drinking purpose के हिसाब से हम बोलते हैं कि yes, it is a neutral water. When we say about industrial wastewater, then normally we take from 6.5 to 9.5 as a safe water or good quality water. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो भी डेफिनेशन के हिसाब से भी अगर मैं बोलूँ, so pH is the anti-log of hydrogen ions. Anti-log of hydrogen ions कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूँ H2O में H is the highly influenced element. यहाँ पे आपका H जो है, this is your highly influenced element. Definition भी ये बोलता है, it is a anti-log of H ions. You can see this is a anti-log of H ions. Definition भी यही बोल रहा है. यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, दिस इज वेरी पावरफुल. अगर हाइड्रोजन आयंस कम होगा तो क्या होगा, और ज्यादा होगा तो क्या होगा? इट इज बेस्ड, द पीएच स्केल इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन आयंस एज पर द डेफिनेशन. इट मींस दैट दिस इज वेरी पावरफुल. आपका जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है. ग्रीक में पावरफुल को हम बोलते हैं सूडो. द मीनिंग ऑफ पावर इन अ ग्रीक इज सूडो. देन उसका स्पेलिंग जो होता था PSUEDO, pseudo, PSUEDO, pseudo. Pseudo means powerful. So pH scale में the powerful thing is your hydrogen. So that's why pH stands for pseudo of hydrogen, or you can say power of hydrogen. I repeat, pH stands for pseudo, H stands for hydrogen, pseudo of hydrogen or power of hydrogen.
So that's why it is written like this. और हमेशा आप देखो हियर मैंने डाल तो दिया है बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये जो pH हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली pH ऑलवेज इन द स्मॉलर, इट्स अ स्मॉल अल्फाबेट, ओके। और आपका जो H रहेगा दैट विल बी अ कैपिटल 1। So this is only a true representation of pH. Okay, pH value denotes the concentration of hydrogen ions in the water, and it is a measure of acidity or alkalinity of a substances. This is the definition. pH is an antilog of hydrogen ions. The pH value ranges from 0 to 14, as we have seen. For pure water, pH value is 7, जो मैंने आपको बताया neutral के लिए, and 0 to 7 is acidic, and 7 to 14 is your alkali range. For public water supply, the value may be 6.5 to 8.5. जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पब्लिक यूज ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अगर हम बात करेंगे तो it should be 6.5 to 8.5. The lower value may cause a tuberculation and a corrosion. आपका जो ट्यूबरक्लोसिस होता है या जो आपका corrosion होता है that is due to the your acidity range, whereas a high value may produce the instruction sediment deposit and other bad effects. Okay, pH value of water is generally determined by the pH paper. There are 2-3 methods. This pH paper it's known as a litmus paper. आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, pH paper को बोलते हैं litmus paper. It changes color from green to blue, blue to yellow. Like this, acidity है तो alkali में change होगा या alkali है तो उसका इसमें color change होगा. Based on that, we'll judge कि ये neutral है, acid है या alkali है. Now, next method is a universal indicator method. क्या होता है कि अगर आपने आपका एक बीकर में वाटर लिया है, सपोज 10 ml लिया आपने, इसमें क्या करना है, आपने 1 या 2 ड्रॉप को डाल दो. ये जैसे ही आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर को ड्रॉपलेट डाला, सो दिस कलर विल गेट चेंज. आपका जो वाटर का कलर है वो आपका चेंज हो जाएगा. एंड अगेन यूनिवर्सल आपका इंडिकेटर जो है उस बॉटल में आपको उस कलर कोडिंग के हिसाब से उसका pH वैल्यू भी दिया रहेगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी दिस बीकर इन द सन रेज. आपको वो सन रेज में देखना चाहिए क्योंकि सन रेज इज ओनली गुड सोर्स ऑफ द लाइट. वो आपको एक अच्छा सोर्स है और जो आपको क्लीन विजन देगा कि वो एक्चुअल में कौन सा कलर है. तो आपको हमेशा सनरेज में देखना चाहिए. एंड देन यू हैव टू टैली द कलर कोड्स विद द सनरेज, व्हाटएवर द कलर्स अपीयरिंग in front of the sun rays. Okay, so that is the second method. This is the second method. Now, very widely it is using now pH method. Very widely this is using now pH method. इसमें क्या होता है कि आपका जैसे बीकर है, say suppose this is your beaker. इस बीकर में क्या हो जाएगा कि आप एक इलेक्ट्रोड मीटर को इंसर्ट कर दोगे एंड विच इज कनेक्टेड टू अ मीटर. अब जैसे जैसे आपका हाइड्रोजन आयरन्स वेरी करते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे इस प्रोब में इसकी रीडिंग चेंज होती जाएगी. ठीक है, इस प्रोब में इसकी रीडिंग्स को चेंज होता रहेगा एंड इजिली इन डिजिटल फॉर्म यू कैन सी योर रीडिंग्स. So nowadays this is very feasible and maximum to maximum labs are using this pH only. Okay, so now next is hardness. It is a property of a water which prevent the leathering of the soap. Hardness is a 2 type. ठीक है, आपको ये हार्डनेस कैसे पता चलेगा आपका वाटर हार्ड है या नहीं है. एवरीवन डू दिस. आप सभी अपने हाथ धोते ही हो, दिन में एक बार तो धोते ही हो. पुराना आने से हमारा फ्रीक्वेंसी और बढ़ गया. बट अगर आपका वाटर हार्ड है, आपने सोप लगा लिया, तो आप देखोगे यहाँ पे हिंदी में झाग बोलते हैं, इंग्लिश में लेदरिंग बोलेंगे या फोम बोलेंगे, वो प्रोड्यूस नहीं होगा. अगर आपका वाटर हार्ड है तो, या अगर आपने साबुन से भी हाथ धोया तो भी जब अगर लेदरिंग नहीं होगा या फोम उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, देन यू विल से दिस इज योर हार्डनेस. इट इज हैपनिंग ड्यू टू हार्डनेस. लेकिन अगर आपने बॉयल वाटर लिया या सादा पानी दिया तो आप देखो उसमें आपका जो झाग फॉर्मेशन है, लेदरिंग फॉर्मेशन है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है. तो आप यू कैन कंक्लूड लाइक दिस कि यस आपका हार्ड वाटर नहीं है. नॉर्मली इसका जो सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है दैट इज इन द इंडस्ट्री एज वेल एज घरों में भी जब कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उसमें भी आपको दिखेगा. One more thing you can see water hard है या नहीं है, this is just because of the precipitation of the ions. ions के कारण ये सब चीजें होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण होता है. अगर आपने घर में अपने वाटर को बॉईल करते हो, अगर आप पतीले में बॉईल कर रहे हो
So if it is your regular practice, then normally you can see in your container, in your beaker, you will see कि उसमें scale formation होना शुरू हो जाता है. Now why this scale formation is happening? Because वो आपका hard water था, जैसे हम boil करते हैं तो क्या होता है कि सब का सब आपका जो हार्डनेस है वो मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो नीचे प्रेसिपिटेट होना शुरू करता है, नीचे सेटल होना शुरू कर देता है. सो दैट्स व्हाई. So there are two kinds of hardness. One is known as temporary hardness, another is known as permanent hardness. And दोनों को रिमूव करने का तरीका भी है. टेम्पररी हार्डनेस को आप इजीली रिमूव कर सकते हो बाय सिंपल बॉइलिंग मेथड. बट यस, अगर आपको परमानेंट हार्डनेस के लिए रिमूव करना है देन आपको कुछ और तरीका यूज करना पड़ेगा. यू मे यूज you may use chlorides and nitrates of calcium and magnesium. Okay, I'm sorry, hold on. Hello, Aaron sir, 5 minutes. Okay, so generally hardness is due to the presence of the chlorides and nitrates of a calcium and a magnesium. ये आपका जो होता है presence of जो आपका temporary hardness है, this is because of the presence of carbonate and sulfates of a calcium magnesium. Whereas see, carbonates और sulfate के कारण आपका temporary hardness है, but presence of chlorides and nitrates of calcium and magnesium रहा तो वो आपका हो जाएगा permanent hardness. तो आपको इसके लिए आप zeolite यूज कर सकते हो, RO यूज कर सकते हो, केमिकल्स यूज कर सकते हो, लाइम यूज कर सकते हो. मतलब देयर आर डिफरेंट methods to remove this permanent hardness. Hardness is usually expressed in a gram per liter, or you can say ppm, or you can say mg per liter. ठीक है, of calcium carbonate in water. हमेशा जब भी हम इसको निकालेंगे तो in terms of calcium carbonate निकालेंगे. Then hardness of a water is determined by EDTA method. एक मेथड और है, EDTA method, titration method है, जिससे हम लोग हार्डनेस का क्या वैल्यू है या उसके कितने पैरामीटर या कितने स्टैंडर्ड तक वो टच करता है, we can find out that. For potable water, hardness ranges from 75 ppm to 115 ppm. 115 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा रहेगा so you cannot drink it. और अगर आपने वो पानी को पिया भी तो yes definitely आप अपने इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आप अपनी किडनी को डैमेज कर रहे हैं. Okay, so this is all about for today. For today's lecture, I'm having a call from downside from principal side, so I have to leave now. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा physical parameters and chemical parameters के दो portion. Is it okay? Is it understand? Have you understood this or not? Yes, sir. Okay. One more thing. Every day, whenever our class happens, after this, this is my normal practice कि मैं जो भी लेक्चर है पीपीटी है तो मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम में. मैं अपलोड कर रहा हूँ. आप देख रहे हैं नहीं देख रहे, आई डोंट नो, मैंने रिपोर्ट निकाला नहीं है, बट यू कैन गो अहेड एंड यू कैन चेक. तो आपका एक रिविजन हो जाता है शाम को. देयर इज नो नीड कि आपको दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा. And you can give your comments as well. This is YouTube में होता है like, share and comment. You can do that. That is also possible. Very soon we'll put everything in a YouTube departmental channel. ठीक है, सारे जो भी lectures हम record कर रहे हैं हम सब वहाँ पे share करेंगे, right? So okay, you may leave now. आप जा सकते हो. I'm also in a hurry. Thank you so much. If anybody having any doubt, you can stay here. You can ask.